Good evening, all of you. Today is day 9 of close test. Okay, so let's start. In this video, only one passage I have taken, so which is quite big. 10 fillers are there. Okay, so let's start with the passage. India is a country of vast diversity and rich cultural heritage. Over the centuries, it has witnessed the rise and fall of numerous civilizations. Now, what do you mean by civilizations? So, what do you mean by civilization? Civilization is nothing but the it is a situation, okay, it's a situation, it's relatively a high level of cultural development and technological development. Where the cultural and the technological development is there is known as civilization. So, what has been asked, India is a country of vast diversity. As I told you, that India is a land of diversity, variety of people and variety of animals and the things are available, and rich cultural heritage. So as you know that India is full of various cultures, so many languages are there, so many traditions are there, so many cultures are there. So it's a cultural heritage, okay, it's a hub of culture. Over the centuries, it has witnessed the rise and fall of numerous civilizations. Okay, so it has been observed that sometimes it's a rise and sometimes it's a fall of civilization. Okay, so what do you mean by civilization? Civilization is nothing but the development of culture and technology, which have all dashed to the making of modern India. So we are talking something about civilization which is related to modern India. Despite the dash differences, the people of India have always found a way to live together in harmony. Okay, though there are so many differences, though we are talking about languages every time, though we are talking about caste every time, but still people of India have always found, they always find a way to live together in harmony. Harmony means peace. Okay. Education plays a crucial role in shaping the destiny of a nation. A well educated population is essential not only for economic development but also for a democratic values. So, you also know that education plays the most important role in every factors. Everywhere education plays the important role. So, here the education plays an important role in improving economic development and democratic values. However, many challenges still many challenges still the Indian education system, including lack of infrastructure, shortage of teachers, and access to quality education in rural areas. So you also know that in rural areas still we are fighting for so many things. Okay, that there are no there are no availability of the teachers are not there, well qualified teachers are not there, then quality education is not there, proper infrastructure is not there. Okay, so many things we are fighting in rural areas. In recent years, the government has taken several steps to dash these problems. Okay, digital initiatives, scholarship programs, and improved funding have brought some dash. Yet, much more remains to be done. Another area of concern is unemployment. Okay, now this is the major factor. This is the major factor as the population is growing and growing and growing, and unemployment is also growing and growing. Okay, because we are still fighting against unemployment. Okay, a large segment of the youth remains jobless despite holding degrees. So many youngsters are there, they are highly qualified, they have like highly qualified degrees, but still they are jobless. Why? Because there are unemployment. This clearly indicates a dash between what is taught in institutions and what is required in the job market. Obviously, whatever we are learning in institution and whatever the things are required to get a job is like there is a wide difference between these. हम इंस्टीट्यूशन में क्या सीखते हैं और भाई जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं वही का वही चीज़ जॉब में यूज़ होता है. जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है. ठीक है.
Therefore, curriculum reforms and skill-based education must be dash. Only then can we prepare a generation that is not just literate but truly dash. Okay, chalo. Let's move on to the option. Our first filler is it has been witnessed the rise and fall of numerous civilizations which have all dash to the making of modern India. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समटाइम्स राइज हुआ है, इंडिया ने विटनेस किया है भाई, सालों साल इंडिया ने विटनेस किया है कि कभी राइज होता है कभी फॉल होता है, किसमें, सिविलाइजेशन में, मीन्स डेवलपमेंट्स में, ठीक है, विच हैव ऑल डैश टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. अब मॉडर्न इंडिया के लिए ये क्या काम करता है, चलिए हम देखते हैं ऑप्शन से. फर्स्ट इज एडेड. एडेड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड. एडेड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड समथिंग. ओके, टू इंक्लूड समथिंग. क्या यहाँ पे इंक्लूड सही ऑप्शन है. इट हैज विटनेस द राइज इन द फॉल ऑफ न्यूमरस सिविलाइजेशन विच हैव ऑल एडेड टू मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो एडेड यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे एडेड क्या एडेड हो रहा है, तो एडेड इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर. कॉन्ट्रीब्यूटेड क्या मतलब होता है, टू गिव समथिंग फॉर अ पर्पज, मीन्स इट्स एफर्ट, इट्स अ हेल्प, वी आर गिविंग हेल्प. ओके, चलो इसको हम साइड में रखते हैं. सपोर्टेड, ओके, सपोर्टेड, तो क्या यहाँ पे सपोर्ट किया है मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया में इसमें सपोर्ट किया गया है राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन. क्या मेकिंग इंडिया में इसको, मॉडर्न इंडिया में इसको सपोर्ट किया गया है, नो, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. इन्फ्लुएंस हुआ है राइज एंड फॉल, क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, नो. सो द सही ऑप्शन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड. क्या हुआ है यहाँ पर, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड रिच कल्चरल हेरिटेज. Over the centuries, it has witnessed the rise and fall of numerous civilizations which have all contributed to the making of modern India. ठीक है, समटाइम्स राइज होता है, समटाइम्स फॉल होता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है. कॉन्ट्रीब्यूशन किस में हुआ है, मॉडर्न इंडिया को बनाने में. ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन यहाँ पे कोई काम का नहीं है. सपोर्ट यहाँ पे कोई काम, क्योंकि यहाँ पे कोई हम सपोर्ट किसको हम करें, जिसको हेल्प चाहिए रहती है. ठीक है, हम उसके साथ खड़े हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पर. इन्फ्लुएंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि हम किसी को देखकर वो काम करते हैं. ठीक है, जैसे अब हम भाई इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे भाई बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनको देख के ही भाई हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर है वो है कॉन्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, वी हैव ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. कहीं ना कहीं से हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, हम हमारा सपोर्ट जो है, हेल्प जो है, हम इंडिया को देते हैं ताकि वो मॉडर्न इंडिया बन सके. चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कल्चरल हो, तो बहुत तरीक़ों से हम मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, कंट्रीब्यूट, सपोर्ट यहाँ पे नहीं आएगा, एडेड यहाँ पे नहीं आएगा, इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं आएगा. कंट्रीब्यूट मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, हम हमारे एफर्ट्स यहाँ पे पुट ऑन कर रहे हैं इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए. चलिए नेक्स्ट. डिस्पाइट द डैश डिफरेंसेस, now what type of differences they are talking about. Despite dash differences, the people of India have always found a way to live together in harmony. अब ये कौन से डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं, भले ही वो डिफरेंसेस हो, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं एक साथ रहने के लिए, एक साथ शांति में रहने के लिए. चलिए लेट्स सी द ऑप्शंस. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फिजिकल तो यहाँ पे नहीं होगा. रिलीजियस मीन्स रिलेटेड टू गॉड और रिलीजन, इट कैन बी, चलो हम इसको साइड में रखते हैं. लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज, cultural related to the ideas, customs, okay, or the social behavior of the society, it is known as cultural.
तो भाई यहाँ पर अब ये तीनों ऑप्शंस लग रहे हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकते हैं। चलिए हम एक बार वापस पढ़ते हैं ताकि हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए। Despite the dash differences, the people of India have always found a way to live together in harmony. ठीक है, तो यहां पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मुझे क्या लग रहा है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, भले ही यहाँ पर भांति भांति के लोग हैं, भले ही यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन तो भी जो इंडिया के लोग हैं वो एक साथ रह लेते हैं और बिल्कुल पीस में रह लेते हैं, हार्मनी में रह लेते हैं। ठीक है, तो भाई हम रिलीजियस की यहाँ पे बात नहीं कर, रिलीजन की बात नहीं करेंगे हम, और हम कल्चर की बात नहीं करेंगे, हम लैंग्वेज की बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि भाई आजकल लैंग्वेज के बारे में कितना ज़्यादा बोलबाला हो रखा है, हमारी लैंग्वेज बोलो, हमारी लैंग्वेज बोलो, यहाँ रहना है तो ये लैंग्वेज बोलना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंग्वेज डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंस, भले ही लैंग्वेज डिफरेंस लोग क्रिएट कर रहे हैं, बट तो भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन सबको साइड में रखते हैं, लैंग्वेजेस को साइड में रखते हैं और एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स सी द नेक्स्ट फिलर। देखिए यहाँ पे रिलीजियस भी ऑप्शन हो सकता है, कल्चरल भी ऑप्शन हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी लैंग्वेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए, okay, chalo, so why we are using language here, because India is well known for its language diversity. ठीक है, इंडिया में तरह तरह के लैंग्वेज आपको मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि इंडिया को लैंग्वेज डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस करिए, आप जहाँ पे रहते हैं आपके आसपास में कितने सारे लोग जो होंगे वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कोई गुजराती होगा, कोई मराठी होगा, ठीक है, कोई उर्दू बोलता होगा, ठीक है, कोई कन्नड़ बोलता होगा, कोई तमिल बोलता होगा। तो भाई अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक जो है वो ज़्यादा फिट बैठता है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड। ओके, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ नेशन। ऑब्वियसली ये आपको पता है भाई, एजुकेशन जो है वो हर सिस्टम में काम करता है, हर सेक्शन में, हर डिपार्टमेंट में भाई एजुकेशन जो है वो काम करता है। तो भाई नेशन को भी चेंज करने के लिए, नेशन को भी बदलने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A well educated population is essential not only for economic development। भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लेकिन वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन एजुकेशन के साथ बढ़ रहा है, तो भाई ये क्या काम करेगा, ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही में क्या करेगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी हेल्प करेगा। चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस, बट ऑल्सो फॉर द डैश ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, चलिए देखते हैं हम। प्रिजर्वेशन, व्हाट डू यू मीन प्रिजर्वेशन, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग। ठीक है, प्रिजर्व करना, जैसे हम घरों में क्या करते हैं, अभी समर सीजन चालू, तो हम घरों में क्या करते हैं, हम अचार बनाते हैं, हम ओके वी मेक पिकल्स एंड व्हाट वी डू, हम पिकल्स बनाते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सके, प्रिजर्व करना। चलिए हम देखते हैं, डिस्ट्रक्शन तो नहीं आएगा, रेगुलेशन यहाँ पे नहीं आएगा। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रूइंग, ओके, और ब्रेकिंग समथिंग। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड लॉज विच आर मेड टू कंट्रोल समथिंग। ओके, सस्पेंशन क्या होता है, टेम्पररी स्टॉप कर देना। ठीक है, तो सस्पेंशन। तो भाई यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, प्रिजर्वेशन। चलिए हम यहाँ पे फिल करके देखते हैं। A well-educated population is essential not only for economic development but also for the preservation of democratic values. So preservation यहाँ पे बिल्कुल appropriate answer है। Why? Because we preserve values. ठीक है, वैल्यूज़ को हम संभाल के रखते हैं। हम जो घरों में, जब हम छोटे रहते हैं, ठीक है, तो जब हम अडल्ट
बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो मैच्योरिटी किस में अब जो भी हमने बचपन से जो हमारे वैल्यूज़ हमने हमारे पास प्रिजर्व करके रखे हैं वो वैल्यूज़ हमें काम आते हैं। ठीक है, जो हमने हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमने जो वैल्यूज़ हमारे पास प्रिजर्व करके रखी है, ठीक है, वही हमें आगे चल के फ्यूचर में काम आते हैं। तो प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए फोर्थ वाला करते हैं। हाउएवर many challenges still dash the Indian economic system। अब यहाँ पे challenges के बारे में बात किया गया है, ऐसी क्या challenges है और वो क्या करेगा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को, जिसमें इंक्लूड होता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज। चलिए हम देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन, प्रमोट। What do you think? Promote is the appropriate answer? प्रमोट तो नहीं होगा भाई, प्रमोट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि भाई रूरल एरियाज में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। ओवरकम भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अफेक्ट कैसे बनेगा? अफेक्ट भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। व्हाट डू मीन बाय अफेक्ट? अफेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ चेंज। ठीक है, कॉज अ चेंज समथिंग, तो इट इज नोन एज अफेक्ट। हिंडर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन हिंडर? हिंडर इज द ऑब्स्टिकल्स, कोई प्रोग्रेस हो रहा है उसमें बाधा डालना, उसे हम कहते हैं हिंडर। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे फिल करके। However, many challenges still hinder the Indian economic system. Yes, this is correct. ठीक है भाई, आज भी challenges है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बाधा बनी हुई है। उसमें क्या इंक्लूड है? कौन कौन से हिंड्रेंस है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, एंड एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है। और ये कहां पर हो रहा है? सारा रूरल एरियाज में। सो हिंडर इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। and dash access to quality education in rural areas and dash access to quality education in India। अब यहाँ पे कौन से एक्सेस की बात कर रहे हैं? चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। अनइक्वल एक्सेस, इलीगल यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, इनवैलिड कुछ नहीं बनता है, अनअवेलेबल यहाँ पे कुछ भी नहीं। इलीगल मतलब क्या होता है? जो लॉ के थ्रू अलाउड नहीं है, जो लॉ उसको अलाउड नहीं करता है उसे इलीगल कहते हैं। और लीगल मतलब जो हम लॉ को फॉलो करके करते हैं वो लीगल होता है। इनवैलिड मतलब भाई वो लीगली वैलिड नहीं है, ठीक है, ऑफिशियली एक्सेप्टेड ही नहीं है, तो ये यहाँ पे काम नहीं आएगा। अनअवेलेबल मतलब अवेलेबल ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन तो यहीं पे चले गए। बचता क्या है? अनइक्वल। क्या है यहाँ पर पूछा गया? एंड अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज। अनइक्वल एक्सेस, भाई इक्वली एक्सेस नहीं है सबको एजुकेशन के लिए इन रूरल एरियाज। ठीक है भाई, अगर घर में एक लड़का है एक लड़की है तो वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि दोनों को पढ़ा सके, या फिर वो मेंटली इतने स्टेबल नहीं है कि वो दोनों के बारे में सोच सके कि भाई किसकी दोनों की पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट है। इक्वल एजुकेशन दोनों को मिलना चाहिए। मेंटेलिटी, दे आर ऑर्थोडॉक्स। ओके, सो व्हाट दे विल थिंक, लड़का है उसकी पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लड़की से ज़्यादा। वाई? बिकॉज लड़की वैसे भी जाने वाली है, तो उसके ऊपर पढ़ाई के खर्चा, उसके ऊपर खर्चा करके हम क्या करें? ठीक है, लड़का हमारे पास रहने वाला है तो उसके ऊपर खर्चा करते तो हमारी मदद करेगा। तो ये क्या है? ये हमारे दिमाग में फिट बैठा हुआ है। तो ये इक्वल एजुकेशन का डिवीजन नहीं है बच्चों में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अनइक्वल, ठीक है, अनफेयर यहाँ पे जस्टिस हो रही है। सो अनफेयर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर हो रहा है। चलिए, इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू डैश दीज प्रॉब्लम्स। भाई अभी रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए? चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या है? अवॉइड, भाई अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। क्या सॉल्व यहाँ पर, एड्रेस यहाँ पर हो सकता है? द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स।
एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स, व्हाट डू मीन बाय एड्रेस? डील करना, हैंडल करना, तो यहाँ पे हो सकता है। सॉल्व मतलब क्या आता है? फाइंड आंसर, फाइंड आंसर। भाई आंसर यहाँ पे नहीं मिला है, यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट से स्टेप्स लिया है, स्टेप्स लिया है, ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए। सीधा आंसर यहाँ पे नहीं मिला है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेप लिया, एड्रेस किया गया है, ठीक है। एड्रेस मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में भाई सोचा गया है कि उसको डील कैसे करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। चलिए सेवेंथ वाला देखते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव फंडिंग हैव ब्रॉट सम डैश, ठीक है। अब भाई डिजिटल इनिशिएटिव्स मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसको जब हम लेके आए हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लेके आए हैं और इम्प्रूव्ड फंडिंग्स जब हम लेके आए हैं, तो क्या हुआ है, क्या हुआ है? चलिए देखते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है? नो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्पेंडिंग मनी, फ्यूचर बेनिफिट के लिए हम मनी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर यूज में हमें काम है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नो। पनिशमेंट नहीं होगा। रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? इम्प्रूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट किस में हो रहा है? इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है जब हम डिजिटल को इनिशिएट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, इम्प्रूव फंडिंग हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? इम्प्रूवमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। येट मच मोर रिमेन्स टू बी डन, बट स्टिल भले ही ये सब लेके आके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी लेके आनी है जिससे और इम्प्रूवमेंट हो सके। अनदर एरिया ऑफ कंसर्न इज अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए तो हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारी अनअवॉइडेबल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बिगेस्ट कंसर्न है। जो ये चोरी वगैरह हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, ये किस लिए हो रही है? बिकॉज ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द यूथ रिमेन्स जॉबलेस डिस्पाइट होल्डिंग डिग्रीज। भाई अच्छी खासी डिग्री है, हाईली क्वालिफाइड है, बट स्टिल जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल के साथ आपकी जो डिग्री है वो मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है। या तो ओके, दिस क्लियरली इंडिकेट्स अ डैश बिटवीन व्हाट इज टॉट इन इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द जॉब मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है? चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस। क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है? नो, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? स्मूथली वर्क होना, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन करना। कनेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। गैप क्या गैप हो रहा है यहाँ पर? चलिए लिंक भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पर ये बोला गया है दिस क्लियरली इंडिकेट्स अ डैश बिटवीन व्हाट इज टॉट इन इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे भाई नेगेटिव वे में जा रहे हैं। क्या नेगेटिव वे में जा रहे हैं? कि डिग्रीज होने के बावजूद भी जब जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्लियरली बताता है, क्या बताता है यहाँ पर कि भाई जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया गया है और जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मतलब क्या है? वहाँ पर गैप है। क्या है वहाँ पर? गैप है। लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग, ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, बट ये जो सेंटेंस है आपका नेगेटिव सेंस है, ओके। ये क्या है? आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर। चलिए, therefore curriculum reforms and skill based education must be dash. Therefore curriculum reforms and skill based education must be dash. अब यहाँ पे curriculum reforms के बारे में बात कर रहे हैं, skill based education के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या बात कर रहे हैं? चलिए देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। अपोज्ड का मतलब क्या होना? अगेंस्ट जाना। अपोजिशन पार्टी आपको पता है ना, तो ये है अपोज्ड। वहीं से अपोज आता है अगेंस्ट जाना। तो क्या यहाँ पे अगेंस्ट है? करिकुलम रिफॉर्म्स एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन मस्ट बी डैश, ठीक है। तो अपोज यहाँ पे नहीं होना चाहिए,
अपोज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड क्या मतलब क्या होता है? रिमूव कर देना। भाई हम यहाँ पे रिमूव क्यों करेंगे? भाई करिकुलम रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे रिमूव की तो बात आएगी नहीं, यहाँ पर अपोजिशन की बात भी आएगी नहीं। भाई स्किल बेस्ड एजुकेशन, भाई ये तो फ़ायदा है हमारी इंडिया के लिए। करिकुलम रिफॉर्म्स ये हमारे फ़ायदा है इंडिया के लिए, तो भाई यहाँ पे अपोज्ड वर्ड नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, एलिमिनेटिंग वर्ड भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि भाई जब हम इनको निकाल देंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारी इंडिया के लिए? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन तो चाहिए ही यहाँ पर, ठीक है। एलिमिनेटेड नहीं होगा। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड एक हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव वर्ड है। अडॉप्टेड मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। ओके, एक्सेप्ट करना, जो भी मेथड्स है, जो भी प्रोसेस है, उसको एक्सेप्ट करना, तो अडॉप्टेड हो सकता है। रेजिस्टेड, रेजिस्टेड का अगेन मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, ना करना, ठीक है, उसको अपोज करना, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेड। तो यहाँ पे अपोज नहीं होना चाहिए, तो अडॉप्टेड सही आंसर है कि भाई हमें अडॉप्ट करना चाहिए। क्या अडॉप्ट करना चाहिए? कल्चरल रिफॉर्म्स और स्किल बेस्ड एजुकेशन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो भाई यहाँ पे नुकसान है हमारा, तो इसलिए पॉजिटिवली सोचो यहाँ पर। Only then can we prepare a generation that is not just literate but truly dash. Again यहाँ पे पॉजिटिव बात की गई है, ठीक है। अगर भाई हम करिकुलम रिफॉर्म्स और स्किल बेस्ड एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं तो ही क्या हो पाएगा? हम जनरेशन को प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। देन कैन वी प्रिपेयर अ जनरेशन दैट इज नॉट जस्ट लिटरेट बट ट्रूली डैश। चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयबल, एक्टिव, फ्लेक्सिबल, एम्बिशियस, एम्बिशियस, ठीक है। तो भाई एम्बिशियस तो सब होते हैं, एम्बिशियस तो सब होते हैं भाई वो, लेकिन एम्बिशियस तभी वो फुलफिल होता है जब आपको जॉब मिलती है। फ्लेक्सिबल यहाँ पे कोई काम का नहीं है, एक्टिव यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एंगेज इन सम एक्शन, एनर्जेटिक। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? केपेबल ऑफ चेंजिंग, ठीक है, जैसे सिचुएशन होती है उसको चेंज करना। और एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? भाई डिज़ायर है, सक्सेस पाने, अचीवमेंट पाने का डिज़ायर है, ठीक है। तो भाई सब एम्बिशियस होते हैं, नौकरी पाने के लिए सब एम्बिशियस होते हैं, मैं ये करूँगा तो मुझे ये नौकरी मिलेगी, सब एम्बिशियस होते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एम्प्लॉयबल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एम्प्लॉयबल। ऑप्शन देखिए आप, सेंटेंस देखिए। ओनली देन कैन वी प्रिपेयर अ जनरेशन दैट इज नॉट जस्ट लिटरेट बट ट्रूली एम्प्लॉयबल, ठीक है। सिर्फ वो पढ़ा लिखा ना हो, साथ ही साथ पढ़ा लिखा तो है भाई, बहुत सारे यूथ है जो पढ़े लिखे हैं, बट पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? वो चाय बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट पे हैं, वो स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो एक ट्रूली एम्प्लॉयबल भी होने चाहिए, जॉब भी होनी चाहिए, जैसा डिग्री है वैसा जॉब उनके पास होना चाहिए, तो ही क्या हो पाएगा? जो हमारे जो गैप है, ओके, जो गैप है उस गैप को हम फिल कर पाएंगे, ठीक है, उसी गैप को हम फिल कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भाई जो यंगस्टर्स है वो अच्छी खासी डिग्री लेके बैठे, बट वो डिग्री का इस्तेमाल कहीं पर हो नहीं रहा है, ठीक है। उनका जो ब्रेन है, उस ब्रेन का जो इस्तेमाल है, ओके, उनके थॉट का जो इस्तेमाल है वो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसलिए नहीं हो पा रहा है, ओके। तो इसलिए भाई पढ़ाई के साथ साथ लिटरेसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी होना ज़रूरी है, एम्प्लॉयबल भी होना ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लोज टेस्ट. So this much for today. It was quite big, so that's why I have taken only one. Okay, so tomorrow will be the last series of close test, and tomorrow I will take two passage, and after that I will start with something else. Okay, some another series. Chaliye. So that's all for today. Hope you like this video. So please do watch, and if anything is there, do comment. Okay, chaliye. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.